So let us start. So, Assalamu alaikum and good morning to one and all. I hope you are good and well at your home. And yesterday we have yes, okay. Yesterday we have started with this one. The previous topic what we have seen, that is the services of the data link layer. Okay, we saw these services like flow control, how the flow control can be maintained. Okay, and then error control, how it is done. Okay, so in error control, if error occurs, then if the frame is corrupted, then it has to be silently discarded. If it is not corrupted, then it will be forwarded to the next layer. Okay, because right now still here we don't have any mechanism, because we are saying that if we are having any kind of mechanism to correct the errors, then only we will correct it. Okay, otherwise एक बार detect करके you will silently discard it. Okay, and if the frame is not corrupted, then it will be forwarded to the upper layer. Okay, so we saw about the congestion control. Just intro about the congestion control, we'll learn in detail about this congestion control in the later section. Then we saw the connection oriented protocol, connectionless protocol. Okay, and after that, now we'll start now for today's session. We'll start with the data link layer protocol. Okay, we are having few set of protocol which works at the data link layer. Okay, these are the data link layer protocols. Okay, in these data link layer protocol, we'll find the first is simple protocol, which is very simple. बहुत ही भोला है हमारा simple वाला protocol. Neither it is having a flow control mechanism, nor it is having error control mechanism. बस बिल्कुल गाय हैं. ओके, बस यहाँ से सेंड किया, वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा तो यहाँ से दूसरा भेज दिया. तो बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है. The next one is the stop and wait protocol, which is quite smart. It implement flow control and also your error control. Okay, so दोनों के दोनों implement करता है, एंड टाइमर भी लगाता है, कॉपी भी मेंटेन करता है, एक्नॉलेजमेंट भी लगाता है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग ये मेंटेन करता है. सो दैट्स वाई स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. सो बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम, एक फ्रेम सेंड किया, सेंडर रिसीवर, सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया. आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट फ्रेम, it will stop and wait for the acknowledgement from the receiver side. So that's why this is as a stop and wait protocol. So it will stop and wait for an acknowledgement from the receiver side. Until and unless it will receive an acknowledgement, it won't send the next packet. So ये हमारा stop and wait protocol, quite smart. Then we have a go back N protocol. In go back N protocol, if some error occur, or cause of any reason, if the frame got corrupted, then it will come back and will send n number of packets, and sorry, n number of frame, because at the data link layer you will talk in terms of frame. Okay, network layer पे जाने के बाद ना frame में बात करो, sorry, packet में बात करो. But now when you are at the data link layer, so you will talk in terms of the frames. Okay, so if cause of any reason few frames are corrupted, then it will come back and send the n number of frame, not the same frame, it will send n number of frames. So it is the one protocol. Then we have another protocol, that is selective repeat protocol, which does not send all the packet or n number of, sorry मैं भी वही बोल रहा हूँ, which does not send n number of frames or any other frame. It select it will resend the selected frames only. Okay, so we'll see in the detail. मुझे start पे थोड़ा सा intro दे रहा था इस बारे में. So let us start with the first one, that is simple protocol. Okay, started some recording. Okay, so as you can see the diagram, that we have sending node and we have receiving node. In the simple protocol we are talking about, we are learning the simple protocol, which is very simple. I'm sure about it. Okay, so सिंपल प्रोटोकॉल कभी पूछा तो नहीं है, बट लेकिन पूछा तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन आल्सो. In simple protocol, we'll find the sending node and the receiving node on the right, on the left, and in the right hand side respectively. Okay, and as you can see, the sending node is getting the data, is getting the packet. Okay, I say packet. Okay, because that data is coming from the network layer, and on the network layer you will talk in terms of the packets. Okay, so your data link layer at the sending side, at the sending node, your data link layer is receiving packets from the network layer. Okay, after receiving packets, what it will do, उसको फ्रेम करेगा. ठीक है, अच्छे से फ्रेम बनाएगा और फ्रेम बना के आके उसको भेजेगा. ओके, it will send to the receiving node.
it will go to the receiving node and you can see this is the logical link, the frames, ये इसको ऐसा हम लोग ने represent किया है, this is the frame. Okay, your frames are going from the sending node to the receiving node. After receiving, it will take out the packet from that particular frame and that packet will be forwarded to the upper layer, that is the network layer. आप यहाँ पे देख सकते हैं. Okay, so that's explanation of the diagram. The same has been explained in this statement only. Our first protocol is a very simple protocol with neither flow nor error control. तो हमारे सिंपल प्रोटोकॉल वाले भैया के पास में ना ही फ्लो कंट्रोल है, इन्हें के कितना भेजना है, वो कितना हैंडल कर सकता है, या उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, हम लोग कम भेज रहे हैं, तो देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. सो फ्लो कंट्रोल नहीं है. सेकेंड थिंग, इट डज नॉट हैव एरर कंट्रोल मैकेनिज्म ऑल्सो. ओके, तो अगर इफ योर फ्रेम, यू कैन सी योर फ्रेम इज फुल्ली कंसिस्ट ऑफ द फ्रेम ओनली, यानी कि डेटा ही इसमें कुछ दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, दूसरा कोई सेक्शन नहीं है, जस्ट टू चेक द एरर्स. ओके, जस्ट टू डिटेक्ट द एरर्स. ओके, so neither we are having flow control nor we are having the error control. Okay, so हमारे simple protocol में ना ही flow control है ना ही error control है. First point. Second, we assume that this receiver can immediately handle any frame it receives. तो बस हमारे imagination पे काम चलेगा. So when sending node will send the frame, our imagination is that your receiving node will receive the frame at any moment of time. Okay, तो वो receive कर लेंगे, हमारा imagination. अब उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो नीचे है. द डेटा लिंक लेयर एट द सेंडर, एट द सेंडिंग नोड, द डेटा लिंक लेयर गेट्स अ पैकेट फ्रॉम इट्स नेटवर्क लेयर, ऊपर से मिल रहा है नेटवर्क लेयर से, मेक्स अ फ्रेम. एक्चुअली देखो मैं ये स्टेटमेंट इसके लिए लिखता हूँ सो दैट आप लोग को ये पता चले, आपको ये समझ में आए कि हाउ यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम in exam. Okay, otherwise हम लोग लिख सकते हैं. So this is the sending node, this is the receiving node. Sending node has a data link layer, it has a network layer, and okay, people used to write anything as a explanation. Okay, so explanation भी हमारा अच्छे से formatted होना चाहिए. So the third and fourth point are nothing but the explanation of the diagram. The third point is regarding the sending node, the fourth point is regarding the receiving node. There's nothing, मतलब कि कुछ ज़्यादा इसमें explanation नहीं है. First two points are important because it shows that your simple protocol does not have flow control nor error control. Okay, दूसरा point बताता है कि there is an imagination that के your receiver will receive the frame at any moment of time when the sender send it. Okay, the third point says at the sending node you will find is sender gets a packet, your sender gets a packet from its network layer. Okay, जब network layer से मिल रहा है तो पैकेट ही मिलेगा, आपके डेटा लिंक लेयर को उसको फ्रेम करना पड़ेगा. ओके, सो योर डेटा लिंक लेयर एट द सेंटर साइड गेट्स अ पैकेट फ्रॉम इट्स नेटवर्क लेयर, मेक्स अ फ्रेम आउट ऑफ इट एंड सेंड द फ्रेम. ठीक है, ऊपर से मिला पैकेट, फ्रेम किया, काम है इसका फ्रेमिंग करना, एंड फ्रेम करके आगे भेज दिया. हो गया हमारा. लास्ट वाला पॉइंट, द डेटा लिंक लेयर एट द रिसीवर रिसीव्स अ फ्रेम, फ्रेम को रिसीव करेगा, from the link, extract the packet निकालेगा out of that particular frame and deliver the packet to its network layer. तो अपने ऊपर network layer को ऊपर forward करेगा. So that's a simple explanation of this simple protocol. तो कुछ नहीं है. The main important point is in the simple protocol is that ना भाई के पास में ना ही flow control है ना ही error control है. Okay? अगर flow control नहीं होगा तो आप जानते हैं क्या क्या consequences हो सकते हैं. अगर error control नहीं अगर है if they are not having any error control mechanism, then what will happen, you know the consequences. Okay, now the same thing has been implemented by the next protocol, that is stop and wait protocol. We'll see that. Okay, so it was all about the simple protocol. Moving to the second protocol, that is stop and wait protocol. Okay, it is also very simple. Okay, we had a discussion about this protocol in the earlier session, but I think आपको याद नहीं होगा शायद. तो एक बार हम लोग इसको रिपीट भी कर सकते हैं. We will come to know all the things what we have discussed. Okay, our second protocol is the stop and wait protocol. Okay, and there's a reason I told you just now that why it is called as stop and wait protocol. Okay, because it just wait for an acknowledgement. That's why इसका नाम हम लोग ने नहीं बल्कि stop and wait protocol इसका नाम रखा गया. So our second protocol is called the stop and wait protocol, which uses both flow control and error control. तो भाई साहब दोनों मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करता है. ओके,
जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के पास में फ्लो को भी कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, इन्हें कुछ ना कुछ मेथड है। एंड उसके एरर अगर कभी फ्रेम्स के अंदर अगर एरर आ जाता है तो उस एरर को भी हैंडल करने का मैकेनिज्म हमारे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में है। क्या है देखते हैं। इन दिस प्रोटोकॉल द सेंडर सेंड्स वन फ्रेम एट अ टाइम, बिकॉज हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। The sender sends one frame at a time and waits for an acknowledgement. So just I told you that when sending frame will send will send a frame or first frame to the receiving node. So after sending the frame, it waits for an acknowledgement. Okay, तो भाई साहब बहुत मतलब के जिसको बोलेंगे हम लोग सत्यवादी है और बैठ के आराम से वेट करेंगे जब तक कि उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम टू डिटेक्ट करप्टेड। अच्छा, ये जो हमारा हुआ मैकेनिज्म जो स्टेटमेंट हुआ दैट आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट फ्रेम योर सेंडर इज वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीविंग साइड। ओके, सो इससे हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बोलो। इससे हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपका जो फ्लो है, आपका जो फ्लो कंट्रोल, आपका जो फ्लो मैकेनिज्म है, इसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई एक फ्रेम सेंड करने के बाद में जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाता तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सो वी कैन से दिस इज एन सो दिस इज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द फ्लो। ओके, अच्छा आपने एक के बाद में अगर भेज दिया तो क्या हो गया, फ्लो यहाँ पर मेंटेन रहेगा। ओके, पहला फ्रेम रिसीवर को मिल गया। ओके, रिसीवर रिसीव द फ्रेम एंड विल एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर के भाई मुझे फर्स्ट वाला फ्रेम मिल गया है, अब आप दूसरा वाला फ्रेम भेज सकते हो। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी कैन से टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। ओके, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्रेम। ओके, तो ये हमारा वन काइंड ऑफ मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं टू कंट्रोल द फ्लो। ओके, या फ्लो कंट्रोल के लिए। अच्छा, ये तो हुआ फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज्म की बात। अब दूसरी बात आती है आपके एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म कौन सा है भाई आपके पास। आप बोलते रहे हैं कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर एरर कंट्रोल मैकेनिज्म आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो क्या है, to detect corrupted frames, to detect the corrupted frames we need to add a crc to each data frame. Okay, you will come to know with the help of this diagram. Okay, when you are sending frame you can just focus on this diagram is very important. Okay, वो जो दो स्लाइड है एक्सप्लेनेशन ये पूरा का पूरा ये आपके डायग्राम में। Okay, so you have a sending node on the left hand side, you have a receiving node on the right hand side. Okay, you are receiving the data, you are receiving a packet from the network layer. As you can see this is the network layer, you are receiving the packet, यहाँ से आपको पैकेट मिला, नेट आपकी डेटा लिंक लेयर पे आया। what your data link layer will do first, it will frame the packet. okay, तो आपके पैकेट को फ्रेम किया तो हम लोगों ने इसको फ्रेम के अंदर पैक कर दिया। okay, after that for error control mechanism, for error control mechanism, as a error control mechanism we are having crc mechanism. crc is called as cyclic redundancy check, crc. it is one of the error detection mechanism. okay, एरर को डिटेक्ट करने का एक मेथड है, एक मैकेनिज्म है। ओके, हम आगे चल के एरर कंट्रोल के ऊपर एक अलग से सेक्शन है। मैंने आपको पहले भी बोला कि इन विच विल लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर, कौन कौन से एरर्स आते हैं, हाउ एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, in an error control mechanism we are having error detection mechanism and error correction mechanism. Okay, so some of the methods, some of the mechanism has the capability to detect the error only, it cannot correct the error, and some mechanism, some method has a capability to detect the errors and to correct the error also. Okay, so कुछ mechanism होते हैं जिसके अंदर होती है capability, कुछ में नहीं होती है। So we have out of those we have one mechanism that is CRC, that is cyclic redundancy check. So this is the one error detection mechanism, it will detect the error. Okay, so one crc part you can see over here, this is the frame, this is the representation of the frame. So this is the ये पूरा का पूरा आपका फ्रेम है। ओके, और इस फ्रेम में आपका पैकेट जो आपको ऊपर से मिला है। ओके, सो दिस इज द डेटा सेक्शन आपका है एंड दिस इज द सीआरसी। ओके, अभी सीआरसी होता क्या है, तो सीआरसी को हम लोग समझते हैं अभी क्या हो रहा है, जस्ट आप लोग की लैंग्वेज में और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से।
क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ये जो डेटा हम लोग का यहाँ पर हम लोग जो भेज रहे हैं, वट एवर डेटा वी आर सेंडिंग फ्रॉम द सेंडिंग साइड, वो सेम डेटा हमको कहाँ मिलना चाहिए, रिसीविंग नोड पर मिलना चाहिए। अगर उस डेटा के अंदर अगर एक भी 1 का 0 हुआ और एक भी 0 का 1 हुआ, तो 1 2 का 4 और वो सब हमारा हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए और मतलब सिंपली क्या होगा, आपका रिसीविंग नोड देखेगा कि भाई डेटा करेक्ट नहीं, और कैसे उसको पता चलेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो अगर आपका फ्रेम अगर करप्ट हो गया, तो आपका रिसीविंग नोड क्या करेगा, इट विल सिंपली डिस्कार्ड द फ्रेम। ओके, और अगर डिस्कार्ड किया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपके सेंडिंग नोड को रीसेंड करना पड़ेगा। ओके, और रीसेंड करना पड़ेगा तो वापस से वही मगजमारी। ठीक है, तो इसके पहले आप अच्छे से थोड़ा सा मैकेनिज्म वगैरह लगा के भेजो तो अच्छी बात है। ओके, तो होता ये है कि आपका फ्रेम भाई साहब रेडी हो गए, सूट बूट पहन के टाई वाई लगा के रेडी हो गए। ओके, अब आपका सेंडिंग नोड क्या करेगा, उस डेटा के ऊपर एक कैलकुलेशन अप्लाई करेगा। ठीक है, कुछ कुछ अप्लाई करेगा, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन एनी 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 काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो भी है वो अप्लाई करेगा, एंड इट विल फाइंड आउट वन वैल्यू। ओके, यानी कि उसने सीआरसी अप्लाई किया, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो भी उसका है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन जो भी था वो सब अप्लाई करने के बाद में इट विल गेट वन वैल्यू। ओके, उसको बोलेंगे हम लोग सीआरसी कोड। ओके, वो सीआरसी कोड मिल गया, वो सीआरसी कोड आपने अटैच कर दिया अपने फ्रेम के साथ में। ओके, तो आपने फ्रेम के साथ में सीआरसी कोड अटैच कर दिया। अब क्या होगा कि ये आपका फ्रेम भाई साहब निकलेंगे घर से। अब निकले 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 चले जंगल में पहुंच गए। ठीक है, जंगल में भाई साहब जो है तो डाकू मिल गए। अब डाकू मिल गए तो क्या हो गया, तो कुछ खजाना लूट लिए, कुछ चीजें लूट लिए, पैसे वैसे छीन लिए। ओके, तो मतलब क्या हो गया, आपका डेटा चेंज हो गया, आपका डेटा चेंज हो गया। ओके, यू आर हैविंग द डेटा एज 1011, थोड़ा लिख के लेते हैं हम लोग, थोड़ा याद रहेगा। तो आपके पास में सेंडिंग नोट पे जो डेटा था वो था 1011। ठीक है, चलो ये हमारा डेटा था, 5 डिजिट का डेटा था, 10111। ओके, फिर आपने क्या किया, इस डेटा का आपने सीआरसी निकाला। तो सीआरसी निकालने के बाद में आपको, चलो इसका मैं थोड़ा सा फ्रेम ही बना देता हूँ अच्छे से। ओके, ये बना दिया हम लोगों ने सीआरसी। ओके, ये पूरा टोटल आपका फ्रेम है, यू गेटिंग द थिंग्स, ये आपका पूरा का पूरा फ्रेम है। दिस इज द पैकेट विच यू हैव रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, and along with that we have calculated and we have done some calculation part on this particular data, and we have got the CRC value. Okay, so that CRC value हम लोग ने यहाँ पे अटैच कर दी है। तो सीआरसी वैल्यू, कुछ वैल्यू लिखने के बजाय मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, खाली सीआरसी लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ओके, तो सीआरसी आपने अटैच कर दिया। अब भाई साहब आप चले, ठीक है, चलते रास्ते में आपका डेटा चेंज हो गया, डाकू ने लूट लिया, कुछ छीन लिया। ओके, तो डेटा आपका चेंज हो गया। अब जब डेटा चेंज होकर जब लूट लुटाए जब पहुंचे आप रिसीविंग नोड के पास में, तो रिसीविंग नोड भाई साहब उसको लेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिसीव द फ्रेम। ओके, your receiving node will receive the frame first, and after receiving what it will do, ये जो डेटा उसको मिला है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से जब बीच में डेटा चेंज हो गया है, तो ये भाई साहब को मिला 1011। ओके, सो बताओ मुझे कौन सा बिट चेंज हुआ है, राइट साइड से सेकंड वाला बिट आपका चेंज हो गया है। ओके, तो मतलब यहाँ पे एक एरर आ गया है। ओके, सो इवन इट इज अ सिंगल बिट एरर, बट द एरर इज एरर। ओके, तो अगर एरर है तो मतलब डेटा अगर आपका चेंज हो गया तो कुछ ना कुछ एरर आ गया। एंड व्हेन रिसीविंग नोड विल रिसीव, अब जब भाई रिसीविंग नोड ने क्या किया, ये रिसीव किए। ओके, चलो मैं यहाँ पर इसको भी फ्रेम में बता देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ के लो, कहीं कहीं भी लाइन जा रही है। ओके, द सेम थिंग वी हैव रिसीव, तो आपका सीआरसी कुछ ऐसा ही है। अरे यार बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, सो सीआरसी। ओके, receiving node what will do, it will again apply the CRC एडिशन कैलकुलेशन जो भी हम लोग ने यहाँ पर किया था, वही मेथड वो इस डेटा पे अप्लाई करेगा। ओके, जब ये डेटा पे अप्लाई करेगा तो क्या उसको भी फिर एक सीआरसी की वैल्यू मिलेगी। ओके, उसको भी एक सीआरसी की वैल्यू मिलेगी, एंड आफ्टर अचीविंग दैट सीआरसी वैल्यू, वो अपनी अपनी वाली सीआरसी वैल्यू को अपनी सीआरसी वैल्यू को और जो सीआरसी वैल्यू वहां से आई है उस वैल्यू को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। दोनों को कंपेयर करने के बाद में जब देखेगा कि भाई ये मैंने जो कैलकुलेशन किया वो सीआरसी अलग है
और जो सीआरसी मुझे वहां से मिला वो सीआरसी अलग है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मुझे जो डेटा मिला है वो करप्टेड डेटा है। और उसमें चलो वो तो बाकी बात है कि कहाँ पर एरर है, कौन से बिट में एरर है और कितने बिट्स में एरर है, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। But the CRC which I have calculated is different. So it means that the data which I have received is not correct. Okay, is not correct, and the data, sorry, the frame is corrupted. Okay, so what the receiving node is going to do? Your receiving node is going to discard this frame. Your receiving node is going to discard this frame. Okay, अब जब डिस्कार्ड कर दिए भाई साहब, तो अब सेंडिंग नोड भाई साहब ने क्या करके रखे थे? यू कैन सी द टाइमर ओवर हियर। ओके, एक टाइमर लगा के रखे थे कि भाई मेरे फ्रेम को सेंडिंग नोड से रिसीविंग नोड तक पहुंचने तक 1 मिनट लगता है। ओके, और आने के लिए 1 मिनट, तो ये 2 मिनट का टाइमर लगा था फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो 2 मिनट का टाइमर हमारे सेंडिंग भाई साहब ने लगा के रखे थे। अब आपका रिसीविंग नोड ने क्या किया है? व्हाट रिसीविंग नोड हैज डन, it has silently discarded the frame, okay, whatever it has received. Okay, so after discarding the same frame, कोई एक्नॉलेजमेंट तो भेजने वाला नहीं है कि भाई हाँ मैंने मुझे मिला था लेकिन मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया हूँ और ये लो उसका एक्नॉलेजमेंट। ओके, जब तक रिसीविंग नोड उसको रिसीव करके ऊपर फॉरवर्ड नहीं करेगा, जब तक के वो उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेजेगा। ओके, मतलब उसको जब उसका सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर वो आगे एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजेगा? ओके, सो इट विल नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट। और जब एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा और जब टाइमर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज 2 मिनट में आ जाना चाहिए था और 2 मिनट कंप्लीट हो गए, नहीं आया, तो व्हाट सेंडिंग नोड विल थिंक? आपका सेंडिंग नोड क्या सोचेगा? योर सेंडिंग नोड विल थिंक है भाई मेरा जो फ्रेम था वो रास्ते में कहीं मर खप गया, कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, कहीं पर उसको प्रॉब्लम आ गई और वो कहीं पर फंस गया। ठीक है, अब मुझे नहीं मिलने वाला। इट विल रीसेंड द सेम फ्रेम। इट विल रीसेंड द सेम फ्रेम। ओके, अच्छा, रीसेंड कब कर पाएगा? रीसेंड तभी कर पाएगा जब वो उस सेम फ्रेम का कॉपी अपने पास मेंटेन रखेगा। ओके, when the sending frame, oh sorry, when the sending node is sending a frame to the receiving node, okay, it will maintain a copy of that particular frame with it. Okay, अपने पास में कॉपी मेंटेन रखेगा। कब तक रखेगा मेंटेन? जब तक के उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट जब तक के उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाता। जब तक के उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाता, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आएगा वो अपने पास से हटा देगा। ओके, अपने जो बफर में कॉपी रखेगा तो उसको हटा देगा। ओके, सो ये रहा आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ऐसे आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काम करता है और इसके अंदर ये मैकेनिज्म यानी कि आपका फ्लो कंट्रोल भी काम करता है और एरर कंट्रोल भी काम करता है। बट एरर कंट्रोल इज लिमिटेड। Error control is limited to the error detection only. Okay, it is not going to correct the errors. Okay, it is going to detect the error only कि भाई एरर है। अब ये भी नहीं बताएगा कि कौन से बिट पे एरर है। ठीक है भाई, कौन से बिट पे एरर है ये भी नहीं बता रहा है, सिर्फ इतना कि एरर है। ठीक है, so with the help of CRC which has been implemented in the stop and wait protocol, we'll come to know that the received frame contains an error and it will be discarded. Okay, सो ये है इसके अंदर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर। व्हेन अ फ्रेम अराइव्स एट द रिसीवर साइड, इट इज चेक्ड if its CRC is incorrect. If its CRC is incorrect, the frame is corrupted and silently discarded. What I have shown you right now. ठीक है, उसका CRC भी कैलकुलेट होगा। If CRC is not correct, then what will happen? The frame will be silently discarded. The silence of the receiver is a signal. The silence of the receiver, अच्छा, जब रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं, मतलब उसकी तरफ से साइलेंस है। ठीक है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ भेज नहीं रहा है। The silence of the receiver is a signal for the sender that a frame was either corrupted or lost. Okay, दोनों में से एक रीजन हो सकता है। तो या तो मतलब भाई साहब निकल लिए कहीं पे, लॉस्ट हो गए, या करप्टेड था। और अगर करप्टेड था तो दोबारा आने का चांस नहीं, बिकॉज उसको रिसीविंग भाई साहब नहीं सीधा टपका दिए। तो वो अगर करप्टेड है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, और अगर लॉस्ट हो गया तो भी आने का कोई चांस नहीं। ओके, एक तीसरा चांस भी है। ओके, एक तीसरा चांस भी है। मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप लोग बोले। एक और पॉसिबिलिटी है जो हमारे फ्रेम के साथ में हो सकती है।
ओके, चैट बॉक्स में डालो या अनम्यूट करके बोलो अगर आप लोग को मतलब बोलना है तो। एवरी टाइम द सेंडर सेंड्स द फ्रेम इट स्टार्ट द टाइमर। ये हम लोग ने टाइमर यहाँ पर भी देखा है। एवरी टाइम व्हेन यू आर सेंडिंग फ्रेम, सॉरी, व्हेन यू आर सेंडिंग नोड will send a frame, it starts a timer. Okay, so that's from my side. That's from sending node to the receiving node 1 minute, from receiving node to the sending node again 1 minute. So that's for your understanding purpose. Okay, तो 1 मिनट जाने के लिए 1 मिनट आने के लिए 2 मिनट का टाइमर लगाया. Okay, if acknowledgement arrives before the timer expires, the timer is stopped and the sender sends the next frame if it has one to send. अगर उसके पास कुछ सेंड करने के लिए है तो वो नेक्स्ट वाला फ्रेम सेंड करेगा अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाता है सक्सेसफुली तो. इफ द टाइमर एक्सपायर्स द सेंडर रीसेंड द प्रीवियस फ्रेम. देखो जो मैं जो बात कर रहा था वो पॉइंट यहाँ पर आ गया है. ठीक है, इवन अभी अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है. इफ द टाइमर एक्सपायर्स द सेंडर रीसेंड द प्रीवियस फ्रेम assuming that the frame was either lost or corrupted, and this means that the sender needs to keep a copy. जो copy की बात किया मैंने आपको, until and unless the sender will receive an acknowledgement of that particular frame which it has already sent. Okay, so it will keep a copy of that particular frame with it. Okay, तो जब तक के उस पर्टिकुलर फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाता तब तक के लिए एक कॉपी अपने पास में मेंटेन करना है. अ कॉपी ऑफ द फ्रेम अंटिल इट्स एक्नॉलेजमेंट अराइव्स. ओके, द सेम थिंग व्हाट वी हैव सीन. यहाँ पर वो मैंने इसको एक्सप्लेन किया. देखो ये पूरा एक्सप्लेनेशन चाहे तो मैं नहीं भी रख सकता था, लेकिन जस्ट इट इज फॉर यू कि एटलीस्ट डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है, दैट यू कैन एटलीस्ट रीड इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन सी कि हाँ कैसे एक्सप्लेन करना है, पॉइंट वाइज लिखना है. ठीक है. When the corresponding acknowledgement arrives, the sender discard the copy and कौन सी कॉपी जो अपने पास में उसने मेंटेन रखा था वो कॉपी को डिस्कार्ड करेगा एंड सेंड द नेक्स्ट फ्रेम इफ इट इज रेडी. ओके, अगर नेक्स्ट फ्रेम है अगर सेंड करने के लिए तो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेगा. ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉसिबिलिटी जो कि हो सकती है, लेकिन मैं चाह रहा था आप लोग में से कोई बोले. कोई बोलेगा? अरे भाई कोई बोलेगा? समीर, ओमकार, अमान, अफीफ, शिफा. गुड मॉर्निंग. ओके चलो मैं बोलता हूँ. है कोई बोल रहा है? आई थिंक ये जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ तो वो पॉइंट हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है. अरे एटलीस्ट कुछ तो बोल सकते हैं कि हाँ नहीं, कुछ तो बोल सकते हैं आप लोग. यस 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 यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही तो मैं सुनना चाह रहा था. व्हाट इफ द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर टाइमर एक्सपायर. अच्छा लेट क्यों पहुंचेगा बताओ मुझे. बिकॉज वी वर हैविंग द कैलकुलेशन लाइक भाई 1 मिनट जाने के लिए और 1 मिनट आने के लिए, तो हमारे पास तो हमारा एक परफेक्ट कैलकुलेशन था. बट व्हाई दैट एक्नॉलेजमेंट हैज अराइव्ड एट द सेंटर साइड, एक्नॉलेजमेंट वापस आया, लेट क्यों आया? सही बोले आपने, लेकिन थोड़ा सा और आगे आगे जाना है. कोई बोलेगा? नेटवर्क इश्यूज, और थोड़ा सा और करीब आया. ड्यू टू सम ट्रैफिक. अरे और आया आप लोग. ड्यू टू सम ट्रैफिक और समथिंग इन द रिसीवर्स एंड. ओके, और करीब आए. I want to hear the exact word. Actually, we have just gone through that word. Okay, I want to hear that network traffic problem. Congestion. Very good, Aman. Congestion. Maybe congestion. Okay. So देखो कंजेशन इतना बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारे पैकेट कभी कभी डिले भी होता है ना. और आपको तो पता है कि कंजेशन ट्रैफिक ऑन योर हाईवेज एंड रोड उसकी वजह से. बराबर, वेरी गुड. So cause of the congestion, cause of the traffic, you are delayed. Okay, आप डिले हो जाते हो, आप लेट हो जाते हो. ठीक है, आने के लिए जाने के लिए. तो ट्रैफिक की वजह से भी इतना इशू आ सकता है, तो हमारे नेटवर्क में भी कंजेशन आ सकता है, ट्रैफिक हो सकती है. ओके, एंड cause of this congestion which is not written in the book. Okay, I'm telling you from my side.
So cause of this congestion what happens, your frames are delayed. Okay, तो भाई साहब को पहुंचना था 1 मिनट में, सेंटर से रिसीवर तक 1 मिनट में लगा, 1 मिनट 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड बढ़ गया। अब उसको जब वापस जाना है तो अच्छा वापस जाते जाते भी अगर ट्रैफिक लग गई तो वापस लग गया 1 मिनट 5 सेकेंड। ओके, दूसरी और एक चीज। ओके, तो 1 मिनट 5 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड कम हो गए, 1 मिनट 5 सेकेंड, तो टोटल लग गया 2 मिनट 10 सेकेंड। तो जब भाई साहब अपने डेस्टिनेशन से मतलब वापस जब सेंटर के पास में आ रहे थे तो 10 सेकेंड बाकी थे पहुंचने को, तभी हमारा टाइमर ने घंटी बजा दिया कि भाई आपका टाइम खत्म, मतलब ये पैकेट का टाइम खत्म हो गया। तो हमारा सेंटर व्हाट इट विल इमेजिन, भाई मेरा जो फ्रेम था वो कहीं लॉस्ट हो गया या करप्ट हो गया। लॉस्ट हो गया तो चला गया, और करप्ट हो गया तो भाई रिसीवर भाई साहब ने उसको टपका दिया। ओके, so what your sender will do, it will resend the packet। तो वहां से उसने पैकेट रीसेंड कर दिया। नाउ थोड़ा सा ट्रेजेडी क्या हो रही है देख लो, सेंडर भाई साहब ने क्या कर दिए, रीसेंड कर दिए पैकेट। ओके, और यहाँ से हमारा पैकेट अभी, भाई मैं जिंदा हूँ, ओके आ रहा हूँ। ओके, तो ये भाई साहब जो आपका जो ओरिजिनल वाला जो जो आपकी फर्स्ट कॉपी थी वो पहुंच रहा है। जब पहुंचेगा, एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा, तो एक्नॉलेजमेंट तो अपने पास में इनके पास में आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट ये ले लेगा, एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसके पास में ये आ गया कि भाई मेरा ये वाला फ्रेम पहुंच गया। अब बात सुनो, आपके सेकंड कॉपी की जो सेकंड कॉपी आपने बना के भेजा है, अब ये पहुंचेगा रिसीवर के पास में। तो रिसीवर बोलेगा भाई आप कौन हो, आप तो डुप्लीकेट दिख रहे हो, बल्कि आपकी कॉपी तो मैंने पहले रिसीव कर चुका हूँ। ओके, तो वो बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो क्या क्या करेगा, रिसीवर तो बताएगा देख मेरे पास में तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। ओके, वो देखेगा, और देखने के बाद में उस जो डुप्लीकेट कॉपी थी उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। ओके, अच्छा ये उसको कैसे पता चलेगा, आपको पता है हमारे डेटा लिंक लेयर पे एक और काम होता है, आप लोगों ने इसके पहले रीड किया है, नंबरिंग होती है। फ्रेम नंबर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं हर फ्रेम को। ओके, ये नंबरिंग इसीलिए होती है सो दैट द फ्रेम्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड दैट कि भाई कौन सा फ्रेम पहुंचा है कौन सा फ्रेम नहीं पहुंचा है। ओके, तो आपका जो रिसीवर जो है वो रिसीवर आपके उसको बताएगा, सेकंड कॉपी बताएगा, देख मेरे पास में नंबर ये वाला करंट नंबर है, तो मेरे पास में ऑलरेडी आ चुका है, और सिंपली उस पर्टिकुलर फ्रेम को क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको इस तरीके से हैंडल किया जाता है। ओके, सो हम लोग कहाँ थे, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, सो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का ये है पूरा एक्सप्लेनेशन, ये इसका डायग्राम है। सेंडिंग नोड, रिसीविंग नोड, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे आ रहा है, and the packets are framed, and the packets are framed properly with proper CRC attached with that particular frame। और उस फ्रेम को फिर हम लोग जाते हैं लॉजिकल चैनल से, जाएगा जाएगा जाएगा, रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर विल डीकैप्सुलेटेड, उसमें से सीआरसी निकालेगा, अलग करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को वापस से कैलकुलेशन करेगा, उसका सीआरसी निकालेगा, उसका निकाला हुआ सीआरसी और सेंडर का निकाला हुआ सीआरसी दोनों को कंपेयर करेगा। इफ द सीआरसी इज करेक्ट फॉर बोथ द एंड, अगर दोनों का सीआरसी अगर करेक्ट हुआ, मैच हो गया, तो मतलब डेटा इज ओके, प्योर डेटा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड इट विल फॉरवर्ड द फ्रेम टू द अपर लेयर, दैट इज टू द नेटवर्क लेयर। ओके, और अगर कुछ एरर है, प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, इफ द फ्रेम इज करप्टेड then it is discarded silently। If the frame is corrupted, then it is discarded silently। Or if the frame is not corrupted, then it will be forwarded, it will be received by the receiving node। रिसीव तो कर चुका है, तो लेने के बाद में उसको क्या करेगा, अपर उसको डिकैप्सुलेट करेगा और डेटा यानी कि पैकेट को अपर लेयर पे फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो ये हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सेकेंड थिंग इसमें देखा हम लोगों ने रिगार्डिंग द टाइमर इज फॉर द फ्लो, to control the flow। again timer can be used to control the flow of the data, flow of the frame। okay, बार बार मैं डेटा बोल रहा हूँ, दिस इज फ्रेम। ओके, हम लोग यहाँ पर फ्रेम्स के टर्म में बात कर रहे हैं। तो so the timer is for the timer is for controlling the flow also। and whenever the data whenever the frames are sent from the sending node, so it puts a timer। okay, and it waits for an acknowledgement,
within a predefined time. Okay, if the acknowledgement is not received by the sending node within that time period, then the frame will be resent. Okay, and for that purpose your sending node maintains a copy also. Okay, so copy maintain करता है भाई सब अपने पास में, और उसके बाद में फिर वो सेंड करता है. Okay, तो ये सब कुछ था आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के. स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का उसका नाम इसके लिए बिकॉज आफ्टर सेंडिंग अ फ्रेम, it waits and sorry, it stop and wait for an acknowledgement from the receiver side of that same frame. Okay, उस सेम फ्रेम का वो acknowledgement का वेट करेगा, and after receiving an acknowledgement it will send the next packet. Okay, so that's why this is stop and wait protocol. Okay, piggybacking, ये छोड़ो मैं बाद में बताऊंगा आपको. हाँ, HDLC, we have a next protocol that is HDLC, and I think ये HDLC मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा है. But before starting the next one, let me ask few question. Okay, 49 है ये, देखते हैं. मैं जिसको बोलूँगा तो वो अनम्यूट करेगा और आंसर करेगा. सुफियान सिद्दीकी. अरे नाम लिया और गायब हो गया. सुफियान सिद्दीकी won't get attendance. इब्राहिम सरगुरु has left the meeting. दो लोग. चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी अटेंडेंस गायब हो जाएंगी आज की. शाहरुख, हाँ शाहरुख, you can unmute yourself now. शाहरुख मर्चेंट. I don't have mic, so at least you can answer on the chat box. Okay, so can you explain me the tell me the purpose of the timer we put in the stop and wait protocol. The purpose of the timer. Okay, please write it on the in the chat box. Taha Sheikh. Taha Sheikh. Taha Sheikh. ताहा शेख भी नहीं है. सबसे पहले अभी जरा नाम ले लेते हैं. जीशान सिद्दीकी. देखना पड़ेगा तुम्हारा आंसर. It stops and wait. It stops and wait for an acknowledgement and wait, and when it gets an acknowledgement, it sends the next packet. But I'm asking the purpose of the timer we put in the stop and wait protocol. That's not answer. इब्राहिम, और कौन भाग रहा है भाई? भागते जाओ. इनकी अटेंडेंस आज क्या हम आज खा जाएंगे. सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद. अगर सेवरल टाइम के बाद में भी अगर नहीं होता है तो वापस सेंड करता है, मतलब रीसेंड करता है. तो वापस सेंड के बजाय रीसेंड इज करेक्ट वर्ड. ओके, तो वापस से रीसेंड करता है. ओके, मतलब रीसेंड करता है. तो टाइमर एक्सपायर होने के बाद में, तो टाइमर हम लोग लगाते हैं इसके लिए कि वो अगर टाइमर एक्सपायर होता है देन ओनली योर सेंडर विल रीसेंड द फ्रेम. ओके, तो टाइमर इसके लिए लगाते हैं. शाहरुख. ओके, ओके, करेक्ट. अभी आगे मैं एक्चुअली इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये है टॉपिक बड़ा. ओके, HDLC इज अ हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल. ओके, which is again a data link layer which works at the data link layer. Okay, और इस प्रोटोकॉल के अंदर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल भी है. सो इट मीन दैट कि HDLC हैविंग बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल.
उसके कुछ मोड्स है, उसके कुछ और इन्फॉर्मेशन है, दैट विल सी टुमारो, बट एटलीस्ट कम से कम ओके। लेट मी से अबाउट कोई और किधर है। कॉलकॉम चिप्स में सीरियस वर्क में मिले हैं सर, कॉलकॉम चिप्स में सीरियस वर्क मिले। ओके अच्छा ओके। ताहा ने आंसर नहीं किया था ना, ताहा शेख। ताहा नहीं, ताहा मेराज, शेख मेराज। तो बोलो ना फिर ताहा। द क्वेश्चन इज दैट in simple protocol, let's explain about the simple protocol first. सिंपल प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करो, मैं जब तक अटेंडेंस पुट करता हूँ। अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं आप लोग। कहा आंसर नहीं किया अभी तक। एक काम करो, पहले अनम्यूट करो जरा। कहा ठीक है, रिमेनिंग यू कैन स्टार्ट मार्किंग योर अटेंडेंस। नेट का मसला है? अच्छा क्या मसला है, जरा मुझे बताना अलग से बाद में, ठीक है। 3 लोग की तो अटेंडेंस आज जाएंगी। रेहान, वेयर इज रेहान इनामदार? रेहान इनामदार, okay, you need to explain me the concept of this CRC. As the error control mechanism, we are implementing the CRC. Okay, so what does that CRC perform? How the CRC functions in the stop and wait protocol? साकेत स्टॉप सिंपल प्रोटोकॉल आपको नहीं पूछा मैं। ओके, it's a problem, some calculation, it performs some calculation. Okay, that calculation, actually I told you about that only, that it performs some addition, some subtraction, some calculation, and take out some CRC value. Okay, so actually we are having a CRC in detail in that particular error control section. So that CRC, in that we have to take a डेटा, उसको डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद में जो लास्ट में वैल्यू मिलती है वो आपका सीआरसी कोड होता है, वो सीआरसी को अटैच करते हैं आपके डेटा से नॉल। तो पूरा ऐसा उसका एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन भी पूछता है। सो अभी के लिए मैंने बोला हूँ कि इट्स अ कैलकुलेशन, इट्स अ एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ तो फंक्शन परफॉर्म, कुछ तो उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट कैलकुलेशन वी गेट सम वैल्यू, and that value is called as the CRC, and that CRC is attached with that particular data, okay, that is the frame, okay। और उसको फिर अटैच करने के बाद में जब भेजते हैं तो आपका जो रिसीवर भाई साहब है, तो रिसीवर ऑल्सो परफॉर्म सम कैलकुलेशन, सम कैलकुलेशन पार्ट, द सेम कैलकुलेशन पार्ट which has been performed by the sender, so that if the CRC which the sender was receiving, so if the CRC is same as the receiver CRC, then we will come to know that case the data is correct, the data is not corrupted,
and whatever data we have received is okay. Okay, but if it is not, then we will understand that your data is corrupted, your frame is corrupted, and it will be silently discarded. Okay, तो सीआरसी भी हम लोग आगे डिटेल में है, हम लोग सीआरसी भी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, ठीक है. 41 responses. शाहरुख मर्चेंट, शाहरुख मर्चेंट.